Okay. Yes, sir. Yes. Okay. So now, students, again we will discuss about inverse trigonometry, and today we will discuss the exercise, first exercise, that is 2.1, I think, है ना? And some revision of class 11th formulas, right? These two things today we will discuss. Ah, First, I will show you the exercise how to solve the questions, right? Actually, till now we have discussed only, we can say that one thing in inverse trigonometry. What is the that is the principal value branch of all inverse trigonometric function. And last 2 3 classes we were discussing about when the function is invertible, right? And especially in inverse trigonometry, the function is invertible when it is what, Rakesh? The function is invertible when it is, when it is, Rakesh, Shashank, inver- 1 1 and on 2 function. or in other word, Ishans, is there any other name for this? 1 1 and on 2, there is one combined word we can use for this. Ishans, tell me that. Ishansh, Fanendra, So objective. no, no, not objective. Biject. Bijective. Bijective. Yes, yes, very good, very good. This is good. This is bijective, है ना? So if the function is 1 1 and on to both, then the we can say that it is invertible. That we have already discussed, है ना? And in the last class, I have shown you one table, right? Where the that is what is written, that the प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, राइट? एंड डोमेन एंड प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में डोमेन एंड रेंज ये उसमें था, राइट? अब उसी पर हम क्वेश्चंस पर जा रहे हैं, उसी की हेल्प से हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, फिर उसके आगे जो होंगे देन अगेन वी विल डिस्कस समथिंग एक्स्ट्रा, राइट? सो देखिए, यू कैन ओपन योर बुक, एक्सरसाइज 2.1, right? And साइड बाय साइड यू कैन ओपन दैट टेबल ऑल्सो, जो हमने आपको लास्ट क्लास में बोला था कि प्लीज नोट डाउन द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच टेबल. इट इज गिवन इन योर बुक ऑल्सो, राइट? In the book also, or in your notebook also, in both the places. In the book, page number 40, the table is given. Huh? Now, today we will discuss. Sharad is there. Sharad, are you there? Sharad? No. Okay. So today we will discuss the questions, how to solve the questions based on inverse trigonometry. This one, right? So first one. Okay. The question is, find the principal value of sine inverse minus 1 by 2. Right? Principal value. It means always you remember this, you have to find the value of the angle, this one. When the sine inverse minus 1 by 2, the angle जिस पर की उसकी वैल्यू sin inverse minus 1 by 2 की होगी, वो एंगल क्या है, राइट? तो जैसे अपन लिखा करते थे कि sin 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 by 2. तो इनवर्स में हमारे को पता करना है कि क्या होगी वैल्यू, राइट? अब देखिए, one thing is very important to when you will solve the questions, आप साइड बाय साइड नोट भी करते हैं ना भाई, राइट? One thing is very important, and important point is, in your table it is given that the principal value branch is, that is -1 to -1 to 1. This is domain of sine inverse function,
and the range is minus pi by 2 to pi by 2. It means that the answer should lie between minus pi by 2 to pi by 2. यहाँ पर देखिए ये रॉन्ग, यहाँ पर ये जो ब्रैकेट है ना, ये इसको आप वो मान करके चलेंगे क्लोज्ड इंटरवल, ये आप क्लोज्ड इंटरवल है ये, ठीक है। हाँ, तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो है वो क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 के बीच में लाई करना चाहिए इसका, राइट। तो अब अगर नहीं लाई कर रहा है तो उसको लाना है, बस इतना ही इसमें केवल आपको ध्यान रखना है, राइट। तो अब यहाँ देखिए वेरी केयरफुली, द क्वेश्चन इज साइन इनवर्स माइनस 1/2, राइट। साइन इन आप हरदम ऐसे ही करेंगे, साइन इनवर्स 1/2 यू शुड राइट, आइदर यू कैन राइट थीटा और वाई इसने लिखा हुआ है, नो प्रॉब्लम। हम चूंकि थीटा निकालने जा रहे हैं तो हम थीटा भी लिख सकते हैं, हाँ ठीक है, वाई लिखा नो मैटर। अब देखिए ये साइन इनवर्स हम इसको कैसे लिख सकते हैं, साइन इनवर्स इस पर वाई पर होकर के हम इसको लिख देंगे कितना, साइन वाई। तो दिस इज साइन वाई इज इक्वल टू बचेगा दिस एंगल वैल्यू माइनस 1/2। हाँ, अब देखिए अभी इस माइनस को आप माइनस 1/2 के माइनस को छोड़िए, केवल कंसीडर करिए 1/2 पर, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इज साइन, तो राइट हैंड साइड में भी आप वैल्यू बताइए। साइन में इस ये 1/2 किसका एंगल होता है, 1/2 के लिए कौन सा एंगल रिस्पॉन्सिबल है जब वैल्यू 1/2 मिलेगी, दिस इज 30 डिग्री, ये लिख 30 डिग्री है ना, दिस इज साइन 30 डिग्री। अब ये माइनस का क्या रोल होगा यहाँ पर, इसको थोड़ा ध्यान से समझना है आपको, क्योंकि आपके पास में क्लास 11th में आपने एक फॉर्मूला लिखा हुआ है साइन इनवर्स माइनस थीटा, ध्यान आएगा आपको, साइन इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, बोलिए, साइन इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। इसको आप लिख लीजिए, सॉरी लिखिए, सॉरी करेक्ट करिए उसे, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, नॉट इनवर्स, प्लीज उसको लिखिए, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। वो फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा तो ये माइनस कहाँ चला जाएगा, ये माइनस इसके एंगल में आ जाएगा, तो माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए साइन वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, ये साइन माइनस पाई बाई 2, ठीक है। तो अब हमको पता है कि इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो कितना होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट और किस क्वाड्रेंट के बीच में होता है, साइन का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है। उस दिन वो डायग्राम आपने एक बनाया होगा, सर्किल का बनाया, देखिए अपनी नोटबुक में, प्लीज चेक करिए, डायग्राम दिख रहा है ना, एक सर्किल बना होगा, उस सर्किल में आपने बनाया होता था फोर्थ क्वाड्रेंट, नीचे देखिए माइनस पाई बाई 2 लिखा है और ऊपर पाई बाई 2 लिखा है, इसमें लाई करता है कौन सा, ये साइन की वैल्यू लाई करती, साइन इनवर्स की। इट मीन्स दैट कि इसकी निगेटिव एंगल पॉसिबल है, अगर ये निगेटिव आ रहा है तो नो हार्म एट ऑल, राइट। तो ये माइनस पाई बाई 6 जो होगा ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होने लाई करेगा, तो ये इसी रेंज में आ रहा है, किस में आ रहा है, ये जो दिया हुआ है माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, ये क्लोज्ड इंटरवल है, इट शुड बी क्लोज्ड इंटरवल, हाँ, माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास में, इससे क्या पता चल रहा है कि साइन माइनस पाई बाई 6 ये किसकी वैल्यू है, 1/2 की, ये यहाँ पर वैल्यू। तो कुल मिलाकर के आप इसको लिख सकते हैं केवल कि जो एंगल आ रहा है वो कितने की इक्वल आ रहा है, y इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 6, माइनस पाई बाई 6 किस में लाई करता है, इसमें, हेंस द आंसर इज माइनस पाई बाई 6, द वैल्यू इज माइनस पाई बाई 6। आया समझ में ये क्वेश्चन, कर पाएंगे आप इसे, हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है, ओके, हाँ बोलिए बोलिए, कौन बोल रहा है, किसी ने अनम्यूट किया, तो किसी को प्रॉब्लम हो तो बोलिए बीच में, है ना, नो मैटर एट ऑल, आप बताइए, ठीक है। चलिए अब देखिए, केवल आपको इतना सा याद रखना है कि ये एंगल कहाँ पर लाई करेगा इसका, ठीक है। अच्छा, अभी इसमें 11th का केवल एक ही चीज हमने यूज की हुई है, कौन सा फॉर्मूला यूज किया हुआ है, आप साइड में लिख लीजिए, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। चलिए सेकंड क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन,
ये हम चाहेंगे कि आप इसको ट्राई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आप सॉल्व, मैं अभी पूरा आंसर नहीं शो कर रहा हूँ इसका, ठीक है। यू योर सेल्फ विल ट्राई बाय द सेम वे। सारे लोग ट्राई करिए प्लीज, है ना। आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना ही पड़ेगा आपको कि आप कर सकते हैं। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स अंडर रूट 3/2। मैं यहां से हिंट दूं कि अभी आप कर रहे हैं? सर पहले करके देख लेते हैं, उसके बाद आप हिंट दे दीजिए। हाँ, वेरी गुड, सारे लोग करिए। हाँ, और बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेना, विद इन 1-2 मिनट यू शुड कंप्लीट द क्वेश्चन। Five by 6 5/6। Yes, sir. 5/6। और लोग बोलिए भाई, बिल्कुल बैठे मत रहना कि जाने Yes, दो। sir. 5/6. 5/6। पूनम आई है क्या? पूनम, पूनम, साईराम, पूनम नहीं है। ओके भाई, संध्या आ रहा बेटा आपके समझ में? कैसे आएगा? आपका आया क्या आंसर? यस सर, आ गया 5/6। क्या लिया आपने इसके इक्वल? क्या लिया बेटा बोलिए, मैं उसको चेक करता हूँ यहीं से। कॉस इनवर्स अंडर रूट 3/2 इज इक्वल टू, आपने क्या लिया? इसको किसके इक्वल लिया संध्या? सर हाँ, ये किसके इक्वल लिया? थीटा के सर। हाँ, वेरी गुड। थीटा वाई कुछ भी ले, जैसे ऊपर लिया ना उसने, सेम टू सेम। यस अच्छा, सर। अब क्या किया फिर उसके बाद में बताइए बेटा? आ गया होगा आपका अंडर रूट 3, यस ये कॉस इनवर्स को इस साइड ट्रांसफर कर दिया होगा, तो ये बन गया होगा अंडर रूट। हाँ बोलो। यस सर, थीटा इज इक्वल्स टू कॉस ब्रैकेट में √3/2। हाँ, कॉस, ये फिर हाँ कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2, ठीक है। और फिर आपने प्रिंसिपल वैल्यू इसकी चेक करना पड़ेगी। क्या होती है यस सर। प्रिंसिपल? प्रिंसिपल वैल्यू कितनी होती है कॉस इनवर्स की? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है? कॉस इनवर्स की रेंज क्या होती है? कहाँ? सर हाँ, 0 to π। क्लोज्ड इंटरवल और ओपन सर इंटरवल? सर क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड। क्लोज यस सर, इंटरवल, माने कि नेगेटिव रिजल्ट इसमें पॉसिबल है क्या? नहीं नो है। सर। देखिए साइन में तो नेगेटिव एंगल पॉसिबल था, क्यों? क्योंकि ये इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इज -π/2 to π/2, दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना। बट इन कॉस द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन सेकंड क्वाड्रेंट, है ना। सो नेगेटिव इज नॉट पॉसिबल। तो पॉजिटिव, और पॉजिटिव ऑलरेडी इट इज पॉजिटिव, तो डायरेक्टली अंडर रूट 3/2 किसकी वैल्यू हो जाएगी उसमें कॉस में? 5/6 की। पाई बाई 5/6। 5/6। वेरी नाइस। चलिए देखिए, यस सर। देखिए आपने इसको लिया। यू हैव आल्सो सॉल्व बाय द सेम वे। cos इनवर्स अंडर रूट 3/2 इज इक्वल टू, आपने थीटा लिया, नो मैटर, तो आपका आ गया होगा cos थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2। अंडर रूट 3/2 कैन बी रिटन एज cos π/6, है ना। हैंस y इज इक्वल टू π/6, बस। और π/6 बिलोंग करेगा ना इसके बीच में, 0 to π के बीच में, डेफिनेटली करेगा। हैंस दिस इज अवर आंसर। भाई किसी को नहीं समझ में आया तो प्लीज बोलिए। नाउ यू विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। सर हाँ बोलो। सर साइन इनवर्स एक्स को जो हम अगर लिखें तो वो 1/sin x क्यों नहीं लिख सकते हैं? नहीं, वो उसमें उसका रेसिप्रोकल वैसा नहीं कर रहा है वो, ठीक है। मैथमेटिकली वो एक्सेप्टेड नहीं है, ठीक है। अभी दिखाएंगे उसको, उसको भी समझाया उसमें। मगर ये आप कभी भी नहीं लिखेंगे कि साइन इनवर्स का मतलब यहाँ पर 2⁻⁻1 नहीं है, कि हम लिख सकते हैं 2⁻⁻1 इज इक्वल टू 1/2 लिखते हैं, ठीक है ना। तो साइन इनवर्स एक्स को हम 1/sin x नहीं लिख सकते, ठीक है। मगर साइन इनवर्स एक्स का वो होता है आपके पास में कॉसेक के उसमें आएगा, है ना, वो फॉर्मूला होता है। मगर ये नहीं कभी होगा कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1/sin x, नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये उसका इनवर्स एक फंक्शन है, उसका कोई रेसिप्रोकल नहीं लिया है हमने,
ठीक है, कॉस अलग फंक्शन है, साइन अलग फंक्शन है इसमें। ओके, हाँ चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 करिए इसको। कॉसेक इनवर्स 2 आप खुद करिए, देन आई विल शो यू द आंसर। नाउ यू विल सॉल्व इट। यस, बहुत स्मॉल क्वेश्चन है, जल्दी आ Sir, जाएगा। pi by 6. 5/6 कौन बोला? निवेदिता। Yes, sir. ओके, अच्छा और भी कोई बोलिए, जिसको डाउट में है वो जरूर बोल लो। भाई देखिए क्लास के सामने तो आपको शर्म लग सकती है, इधर पे तो कोई शर्म की बात ही नहीं है, आपको केवल एक बार इसको बता दो सर। हाँ बेटा फिर से इसको सर एक बार इस क्वेश्चन को रिपीट कर दो, बता दो। इसका आंसर दिखाना है क्या? बोलो, आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी, फिर से बोलो एक बार प्लीज। यस सर, इस क्वेश्चन को समझा दो सर। अच्छा अच्छा ठीक है, समझाऊंगा, बिल्कुल बिल्कुल, डोंट वरी। बिल्कुल इसी के जैसा है बेटा, जैसे ये हुआ है ना प्रीवियस क्वेश्चन, देखिए वैसे ही मानना है। कोई बोलेगा जिसका हो गया है, अगर किसी और को भी डाउट है इसके जैसे, शायद गोविंद बोल रहा था मेरे ख्याल से, है ना? हाँ तो देखिए कॉसेक इनवर्स 2 को आप ले लीजिए। हाँ, कॉसेक इनवर्स 2 इज इक्वल टू आपने मान लिया कितना, y के इक्वल, ठीक है गोविंद है? अभी मैं उसका सॉल्यूशन भी दिखा रहा हूँ, पहले समझा रहा हूँ, आप उसको कॉपी में समझने की कोशिश। कॉसेक इनवर्स 2 इज इक्वल टू y लीजिए, तो ये हो जाएगा कितना, ये cos y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, जैसे ये आ रहा था ना cos y इज इक्वल टू √3/2, तो यहाँ cos y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। cosec y इज इक्वल टू 2। cosec में किसकी वैल्यू 2 होती है? cosec में कितने डिग्री पर आपको 2 मिलेगा गोविंद? cosec में किस एंगल पर 2 मिलता है आपको वैल्यू? क्लास 11 30 डिग्री पर, है ना? क्योंकि साइन 30 जो होता है वो 1/2 होता है, तो cosec 32 हो जाएगा। ठीक है, तो बस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5/6, और 5/6 देखिए उस ब्रांच में लाई करेगा। cosec की क्या ब्रांच होती है? cosec की ब्रांच थोड़ा अपनी कॉपी में देखिए, नजर डालिए। cosec की ब्रांच कितनी है? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -5/2 to π/2 और माइनस 0, है ना? क्लोज्ड इंटरवल है, तो ये जो आपका आने वाला है π/6 वो उसमें लाई करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, ठीक है ना? उस रेंज में करेगा, हेंस देखिए आंसर होगा उसमें। ये देखिए गोविंद यहाँ ध्यान दीजिए, ये देखिए cosec इनवर्स 2 इज इक्वल टू y, तो cosec y इज इक्वल टू 2, ये cosec इनवर्स यहाँ जाएगा तो ये क्या बनाएगा? cos y बनाएगा, इनवर्स की प्रॉपर्टी से। तो ये 2 हो गया, तो 2 किस में वैल्यू होगी? π/6 की, तो मतलब y इज इक्वल टू कितना हो गया? y इज इक्वल टू π/6, and π/6 is like, this is the principal value branch. Always you should write the principal value branch in each and every question, please। अगर आपको नहीं लिखेंगे बार बार तो आपको याद नहीं होगा, और फिर आप हरदम बुक पलटते रहेंगे। मैं कल नेक्स्ट क्लास जो होगी, कल तो नहीं है, मैं नेक्स्ट क्लास में सबसे पूछूंगा, आपको याद होना चाहिए। π/6 उसमें लाई करेगा, हेंस दिस इज द आंसर। गोविंद ओके, एनी डाउट? नो डाउट सर, बन गया? क्लियर। क्लियर है? सर हाँ बोलो, यस बोलिए। हम cosec इनवर्स को sin x sin लिख सकते हैं। cosec इनवर्स x को कितना? sin x नहीं, cosec इनवर्स x को sin x नहीं लिख सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर उसने क्या लिखा हुआ है बेटा, देखो यहाँ पे cosec इनवर्स 2 इज इक्वल टू y है, तो अब ये इनवर्स की प्रॉपर्टी से ये
जो होगा ना, ये cos y इज इक्वल टू 2 लिखा जा सकता है। आप पूछना चाह रहे हो कि cosec इनवर्स x इज इक्वल टू cosec x पूछना चाह रहे हैं आप ना? नहीं सर, सर cosec इनवर्स x इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन x होता है। हाँ तो सर हम हाँ उसको क्या साइन x में कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ, उस तरीके से आप ले जा सकते, हाँ ये कर सकते हो कि cosec को आप साइन में ले जाके कर सकते हो। क्योंकि अभी वो फॉर्मूले अपन ने डिस्कस नहीं किए, इसलिए अभी अपन उस पर नहीं गए हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट उसमें करेंगे, तब आप उसको बिल्कुल कर, अगर आपसे बनता है तो आप कर सकते हो। ठीक है, हाँ बेसिकली आप ये cosec cot एंड sec को चाहें तो अपने cosec को साइन में चेंज कर सकते हैं, cot को tan में चेंज कर सकते हैं, एंड sec को cos में चेंज करके कर सकते हैं। नो मैटर। हाँ चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको करिए अब जल्दी से। tan इनवर्स माइनस रूट थ्री, tan इनवर्स माइनस रूट थ्री -π/3 बाकी लोगों को भी करने दीजिए, उनका भी ओपिनियन सुनने दीजिए। सर -π/3। -π/3। अच्छा, माइनस पॉसिबल है क्या 10 में? यस सर। यस सर। अच्छा क्यों, उसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है? व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू? हाँ बोलो, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इज -π/2 to π/2। क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल के साथ बोला करो। ओपन इंटरवल, ठीक है, इसका क्या होता है? ओपन इंटरवल है, मतलब इट शुड लाई इन विच टू क्वाड्रेंट? फोर्थ एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट। मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में माने इसकी नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल है, इसलिए अपन कुछ भी करेंगे। बिल्कुल सही बोला है आपने आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं। यस, और कोई बोलिए किसी को, मैं दिखा, आई विल शो यू, हेलो, आई विल शो यू द आंसर। सर शायद वो क्लोज्ड इंटरवल है। कौन सा वाला? 10 का? यस सर। नहीं बेटा, 10 का ओपन इंटरवल है। चेक इट, आप अपनी कॉपी में बुक में देखो, बुक है आपके हाथ में, पेज नंबर, यस पेज सर। नंबर 40। देखिए पेज नंबर 40, बिल्कुल सेकंड लास्ट फॉर्मूला इज गिवन, tan इनवर्स यस सर। open interval is written there. In your book it is closed interval. नो सर, इट्स शायद ओपन ही है। ओपन ही है बेटा वो, है ना, इट इज ओपन इंटरवल। मैंने आपको बताया हुआ था क्लोज्ड इंटरवल है। देखिए इन तीन, हमने दो कैटेगरी में आपको डिवाइड किए थे फॉर्मूले, छह बताएंगे वो तीन फणिंद्र, वो कौन से तीन तीन कैटेगरी, दो कैटेगरी कौन कौन सी थी? फर्स्ट कैटेगरी में हमने कौन से तीन फॉर्मूले रखे थे? हाँ साइन, हाँ tan हाँ, एंड cosec। साइन, tan एंड cosec। cosec। हाँ वेरी गुड, बिल्कुल सबको याद है ना? साइन, cosec एंड tan हमने फर्स्ट कैटेगरी में रखा था। इनमें क्यों रखा था हमने इसमें? बिकॉज इन ऑल दीज थ्री ऑलवेज -π/2 to π/2 आता है। साइन का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इज क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2। cosec का ये इट इज रिटन हियर इन फ्रंट ऑफ यू -π/2 to π/2 क्लोज इंटरवल -0, राइट। -0 इसलिए कर दिया क्योंकि अगर cosec का रेसिप्रोकल लेते हैं तो 1/sin, और साइन में अगर 0 रखेंगे तो 0, तो 1/0 नॉट डिफाइंड की कंडीशन होगी, इसलिए उसको माइनस कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, ओके। एंड ऐसे ही होता है tan का ओपन इंटरवल होता है। चलिए इसका हमने आंसर आपको दिखाया। हाँ यस यस सर बेटा, ओपन और क्लोज्ड में ये डिफरेंस होता ओपन है और क्लोज में कि डिफरेंस होगा। ओपन इंटरवल अगर होगा तो ये वैल्यू जो है ना -π/2 to π/2, ये उसमें बिलोंग करेगी। आंसर अगर आपका -π/2 एग्जैक्टली आ रहा है, देन ऑल्सो यू कैन कंसीडर इट। ठीक है, इफ इट इज क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, हाँ
और या पाई बाई टू आ रहा है, इन प्लेस ऑफ क्लोज्ड इंटरवल इफ इट इज ओपन इंटरवल, ठीक है, होता यही जैसे 10 में है माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, मगर उस समय इफ यू विल गेट द आंसर माइनस पाई बाई टू, एग्जैक्टली माइनस पाई बाई टू और प्लस पाई बाई टू, राइट, बट in that condition you cannot take this one as a answer because it is open interval. open interval का meaning होता है कि वो आंसर उसमें इंक्लूड नहीं है, वो आंसर उसमें इंक्लूड नहीं है, बाकी बीच के आंसर हैं, बट दीज टू एक्सट्रीम पॉइंट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द आंसर। सर वही तो पूछा सर, मतलब क्यों नहीं है इसके अंदर? वो इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि अगर आप इसके ग्राफ पे थोड़ा सा अगर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, हमने उस दिन भी आपको बताने की कोशिश की थी कि जो जैसे साइन का होता है ग्राफ, ठीक है, तो साइन के ग्राफ में यहाँ पर साइन का अभी एक वीडियो में दिखाने की कोशिश करूंगा, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिए। आप देखिए बुक में है, आपकी बुक है आपके हाथ में सबके, प्लीज ओपन योर बुक। बुक में देखिए आप फर्स्ट ये वाला देखिए, हाँ यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ देखिए, पेज नंबर 35, सबने ओपन किया पेज नंबर 35 इन योर बुक? यस सर। से यस और यस। अब इसमें देखिए देयर आर 3 ग्राफ्स आर गिवन। फर्स्ट ग्राफ इज साइन एक्स ग्राफ, सेकंड ग्राफ इज साइन इनवर्स एक्स ग्राफ, उसमें पूरा दिया, बट वन प्रिंसिपल वैल्यू वो 0 के वहां पर डार्क से उसने दिया हुआ है। देखिए ये माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू जो है ना वो उसमें इंक्लूड हो रहा है उस ग्राफ में। ग्राफ जो होगा वो माइनस पाई बाई टू की जो लाइन होगी उसको कट करते हुए जा रहा है आगे। आगे अगर और आगे बढ़ाएंगे तो वो आ रही बात समझ में, आगे गया है वो, देखिए फिर उधर जाकर के माइनस पाई बाई टू से फिर पाई पर गया है, तो वो उसको इंक्लूड कर रहा है वहां पर उस, देयरफॉर दिस इज ये दिस ब्रैकेट शुड बी क्लोज्ड। बात आ रही क्या कुछ समझ में? हेलो सर एक और बता Yes, दीजिए sir. सर, नेटवर्क प्रॉब्लम। देखिए इस ग्राफ पर, ग्राफ से आपको डिसाइड हो जाएगा कि वो वैल्यू बिलोंग करेगी, माने क्लोज इंटरवल होगा कि ओपन इंटरवल होगा। देखिए साइन में अगर आप देखें यहाँ पर, तो साइन में क्या हो रहा है कि जो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ देखने की कोशिश करिए, या साइन एक्स का ले लीजिए जहां से उसने प्रिंसिपल वैल्यू ली हुई है, उसमें भी क्लियर हो जाएगा। तो उनमें देखिए अगर हम इनवर्स में बात करें तो ऑन वाई एक्सिस एंगल्स आर गिवन, ठीक है, और जो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का एंगल है, वो जो कर्व है वो -1 से 1 के बीच में जा रहा, डार्क किया हुआ है उसने, और ऊपर लिखा हुआ है एक डॉटेड लाइन बनी है पाई बाई टू, और नीचे भी माइनस पाई बाई टू बनी है उसी में। तो ये ग्राफ उसको कट करते हुए जाएगा, मतलब वो उसको इंक्लूड करेगा उस वैल्यू को, ठीक है। मगर यदि आप 10 की बात करें, 10 में ओपन इंटरवल आ रहा है, 10 का ग्राफ ओपन करिए, देखिए पेज नंबर ये देखिए, ये यहाँ पर है पेज 39 30, हाँ 39, इसमें Nine. ग्राफ नंबर 2, हाँ 39 ग्राफ नंबर 2 देख रहे हैं सारे लोग? देखिए अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर ध्यान से देखना बेटा, सेकंड ग्राफ में एक डार्क लाइन बनी हुई है, ब्लू डार्क लाइन, ब्लू डार्क लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, देखिए पासिंग थ्रू ओरिजिन, इट इज विजिबल इन पेज नंबर 39 ग्राफ नंबर 2। अब Yes, sir. अब उसमें ध्यान से देखना, जब वो ग्राफ ऊपर जा रहा है 0 के ऊपर, और वो पॉजिटिव साइड में जा रहा है, और ऊपर एक डॉटेड लाइन उसने बनाई हुई है पाई बाई टू पर, वो उसको कट नहीं करेगी, वो उसके पैरेलल जाएगी, वो उसके क्या जाएगी बेटा, पैरेलल जाएगी। ऊपर उस ग्राफ में जरूर आपको दिख रहा है, मगर नीचे एकदम क्लियर हो रही, उसी में नीचे आई है माइनस पाई बाई टू पर, देखिए इस साइड थर्ड क्वाड्रेंट में वो उसको कट नहीं कर रही, पैरेलल जा रही, दिख रही है, क्लियर हो रहा है ये? यस सर। हेलो स्टूडेंट्स,
बोलिए। यस सर। यस सर। तो ये डिसाइड करेगा आपको, अगर ये इसको कट कर रहा होता ना तो ये डिसाइड होता कि इंटरवल कैसा होगा, क्लोज्ड, मतलब वो वैल्यू इंक्लूड होती। यहाँ पर चूंकि ये इसको कट नहीं कर रहा, उसके पैरेलल जा रहा है, इंफिनिटी तो निकल जाएगा, राइट। हेंस इट इज दीज टू वैल्यूज आर नॉट इंक्लूडेड, -π/2 एंड π/2 आर नॉट इंक्लूडेड। और वहां पर उसने क्या लिया, ओपन इंटरवल लिया। कौन सा इंटरवल लिया वहां पर उसने, ओपन इंटरवल लिया। आया मैटर समझ में कि नहीं आया? अभी किसने पूछा था ये? सर मैंने आयुष। आयुष, नाम बोलो, मैंने दिख नहीं रहा मुझे, नाम बोलो। यस सर। आयुष, सर आयुष। यस आयुष। तो ये मैटर आया आयुष समझ में कि वाई यस दिस सर इज। और भी लोग थोड़ा बताइए प्लीज, वो ग्राफ का जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया वो आपको समझ में आई बात? वाई इट इज क्लोज यस एंड सर। वाई इट इज ओपन, ठीक है ना। तो वो ग्राफ क्या कर रहा है बेटा, वहां पर अगर उसको उस पॉइंट पर कट नहीं कर रहा है, जैसे टेन इनवर्स में क्लियर कट दिख रहा है, तो देखिए यहाँ पर ये क्या हो गया, -π/2 और π/2 पर उसने दो पैरेलल लाइन डॉटेड करके दिखा रहा है वहां पर, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, है ना। और वो ग्राफ डार्क लाइन उसको कट नहीं कर रही है। हेंस वी कैन नॉट टेक द क्लोज्ड इंटरवल, वी विल टेक द ओपन इंटरवल। आई होप क्लियर है, ठीक है। बाकी लोग भी जो केवल सुन रहे हैं उनको अगर डाउट है तो बोलिए। सर एक और चीज पूछनी थी। हाँ बोलिए। सर जैसे कि जो साइन इनवर्स का जो रेंज है सर, वो होता है स्क्वायर ब्रैकेट -π/2 कॉमा π/2 स्मॉल ब्रैकेट, तो स्क्वायर ब्रैकेट। नहीं तो हाँ हाँ। हाँ। और सर हम्म कॉसेक इनवर्स का सर जो रेंज है सर, हम्म वो भी सेम है, बस माइनस करली ब्रैकेट 0 है। सर ये हाँ। माइनस करली ब्रैकेट 0 की वैल्यू कितनी होगी? नहीं, जीरो की वैल्यू नहीं होगी, जीरो हम इंक्लूड नहीं करेंगे उसमें। -0 से मतलब ये है कि अगर एंगल 0 आ रहा है आपका, ठीक है ना, तो वो आपको आंसर नहीं लाई करेगा, आंसर में नहीं आएगा वो, उसका ये मीनिंग है। समझ रहे बात? अगर आपका किसी का आंसर मान लीजिए वहां पर 0 आ रहा है तो वो 0 नहीं होगा, इट इज नॉट इन दैट रेंज, ये मतलब है उसका। इसलिए उसको माइनस कर दिया, उसने अलग कर दिया कि -π/2 से π/2 के बीच में वास्तव में 0 तो आ रहा होगा, आएगा ही आएगा, तो मगर 0 को अलग कर देना वहां से, इसलिए उसने अलग से -0 लिखा। क्यों? अगर हम 0 वहां पर लेंगे ना तो कॉसेक का रेसिप्रोकल 1/sin होता है, तो अगर हम 0 लेंगे और 0 वैल्यू रखेंगे तो वो कितनी हो जाएगी, नॉट डिफाइंड की कंडीशन पर पहुंच जाएगा। ठीक है अनुराग, आई बात समझ में ये? यस सर। तो वो कितनी वैल्यू नहीं है, वो 0 को, एंगल अगर 0 आ रहा है तो वो इंक्लूड नहीं करना है उस आंसर में। दिस इज द मीनिंग ऑफ -0, उसने अलग कर दिया उसमें से आंसर। इसके बीच में तो लाई करेगा, -π/2 टू π/2, फोर्थ क्वाड्रेंट से थर्ड क्वाड्रेंट के बीच में जब जाओगे तो बीच में लाइन 0 एंगल की आएगी। कल देखिए एक सर्किल बनवाया हुआ था, ठीक है, मगर उसको आपको एक्सक्लूड करना है। ओके तो सर अगर क्वेश्चन नंबर 3 में कॉसेक इनवर्स 2 की वैल्यू π/6 की जगह 0 आई होती सर, मतलब 2 की जगह कुछ और होता, तो सर हाँ, फिर क्या लिखते? नहीं अगर कुछ होता और होता, और अगर वो कुछ 0 पर अगर बात आ रही होती आपकी, ठीक है बेटा, तो हम उसको नहीं उसमें लेते आंसर में, ठीक है। हम बोलते हैं आंसर दैट विल नॉट लाई इन द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है ना। यस। हाँ, आपको लिखना पड़ता वहां पर। चलिए ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं। तो सर ये इसका इसका कोई रिलेशन है क्या सर, कंटिन्यूटी है से? सर क्या बेटा? कंटिन्यूटी से उसका कोई रिलेशन है क्या, इस इनवर्स का? नहीं, एज सच डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं, मगर हाँ कंटिन्यूटी से ये है कि ग्राफ आप समझ सकते हैं कि जैसे कंटिन्यूअस ग्राफ है कि नहीं है, ये वाली बात आप समझ सकते हैं उसमें, राइट। कि अगर जैसे आप देखें यहाँ पर, इसको ग्राफ को देखें, ओपन करिए फिर से आप, ये देखिए साइन का ग्राफ ओपन करिए, साइन इनवर्स वाला ओपन किया आपने, पेज नंबर कौन सा है? सर 35। हाँ 35 पर, ठीक है।
35 का अगर आप साइन वाला ग्राफ देखें, ठीक है, इनवर्स का, तो ये यहां से थर्ड क्वाड्रेंट से अगर आप ड्रॉ करेंगे ना, तो इस ग्राफ को थर्ड क्वाड्रेंट से ऐसा मूव करते हुए जीरो से और फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। मतलब ये जब होता है, जब ऐसे लेफ्ट टू राइट ऊपर चलता है, ये लेफ्ट से राइट पर जा रहा है, तो ये कहलाता है आपका इंक्रीजिंग होता है। क्या होता है? इंक्रीजिंग ग्राफ होता है ये। और कहीं ब्रेक नहीं हो रहा, बीच में ब्रेक हो रहा क्या? कहीं इस इंटरवल के लिए कहीं ब्रेक हो रहा क्या? ये वाला ग्राफ नहीं हो रहा, इसलिए ये कंटिन्यूअस ग्राफ है। कौन सा ग्राफ है? कंटिन्यूअस ग्राफ है। ये इसकी आप उससे करेक्टर समझ सकते हैं, करेक्टरिस्टिक्स उसमें ग्राफ को देख करके ये कुछ बता सकते हैं आप कि ये कंटिन्यूअस ग्राफ सर फिर इंक्रीजिंग कॉसेक है। सर फिर कॉसेक नहीं है ना सर, कंटिन्यू। हाँ, अगर कॉसेक वाला आप कहाँ पर है? पेज नंबर कितना था? हाँ, लास्ट में है। एक मिनट में ओपन कर लूं जरा। हाँ, उसी के बाजू में है। हाँ, तो ये देखिए, ये कॉसेक वाला जो है ये बीच में ब्रेक होएगा, ठीक है। हाँ, यस सर। तो नहीं होगा, कंटिन्यूअस नहीं होगा, ठीक है। चलिए, अब अपन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इस पर आइए। -1/2 को आप करिए जल्दी से। श्रेयस इज इन द क्लास? श्रेयस, आर यू देयर? π/3 सर, π/3 Sir, 2 pi by 3. 2π/3। अच्छा, और पहले वाले ने किसने क्या बोला? आयुष ने π/3 बोला। सर 2π/3 है। 2π/3। अच्छा, और कोई बताइए। और किसी का? सबके आ रहे हैं आंसर? यही है, किसी को डाउट नहीं है? चलिए, माइनस पॉसिबल है क्या कॉस में? यहाँ माइनस में दिखा रहा है। आपने 2π/3 किस हिसाब से लिया? यहाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ा सा। सर आंसर माइनस में नहीं आएगा सर, ये तो एंगल है। हाँ, तो भाई आपने इसको लिया y के इक्वल लिया, तो ये कितना बन गया होगा? cos y = -1/2। यस सर। Yes, sir. तो फिर आपने क्या किया? यहीं पर इंपॉर्टेंट चीज है, फिर आपने क्या किया? -1/2 बन गया। सर उसको हाँ। पॉजिटिव बनाने के लिए पाई से माइनस कर दिया। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि वो एक फॉर्मूला है 11th क्लास का। ये आपको वो फॉर्मूले भी इस क्वेश्चन को देखिए, फिर मैं आपको फॉर्मूले भी दिखा दूं। मैंने 11th क्लास की बात हुई थी, इसको देखिए। ये कंडीशन, ये देखिए, इसको y के इक्वल लिया, तो cos y = -1/2, तो माइनस cos π/3, तो ये हो गया cos π - π/3, ठीक है। अब ये हो जाएगा π - π/3, तो ये हो जाएगा cos। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया? ये आपका क्लास 11th का है कि अगर हम लेते हैं 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा, तो ये आपके पास में रिजल्ट हो जाएगा माइनस cos थीटा। मतलब इस माइनस cos π/3 कैन बी रिटन एज cos π - π/3। तो इसको हमने चेंज करके ये बना लिया और इसका एलसीएम ले लिया, तो 2π/3, तो cos y = 2π/3 आ गया। हेंस 2π/3 इज द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करेगा, निश्चित रूप से करेगा। क्यों? क्योंकि इसकी ब्रांच होती है फर्स्ट टू सेकंड क्वाड्रेंट, दैट इज 0 to π, और ये एंगल वहीं पर लाई करेगा। कितने डिग्री होगा 2π/3? 2π/3 मतलब 120 डिग्री। हेलो स्टूडेंट्स, आर यू देयर? Yes, sir. एंड 2π/3 जो होता है वो 120 डिग्री इसके बीच में लाई करेगा। हेंस दिस इज द आंसर, राइट? ओके, चलिए अब देखिए, मैं आपको क्या वो फॉर्मूले दिखाऊं क्या 11th के देखने कि अभी आप इसी क्वेश्चन को कर रहे हैं? इस फॉर्मूले को लिख लीजिए आप जरा। हाँ, 11th का दिखा दें फॉर्मूले। चलिए 1 मिनट देख लीजिए।
स्पेशली यही वाले दो तरीके के दिखा रहा हूँ, ये देखिए। देखिए फंक्शन एंड एंगल 90 माइनस थीटा, अगर हम लेते हैं साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा मतलब किस क्वाड्रेंट में अप्लाई करेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, है ना। 90 माइनस थीटा मतलब कितना होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट ही रहेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, इसलिए रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है। मगर आपको सर ने बताए होंगे लास्ट ईयर जब ये फॉर्मूले बताए होंगे कि ये 90 मतलब इसका मल्टीपल कितना है? 1 है, 1 इंटू 90। और 1 कौन सा नंबर है? ऑड नंबर है। अगर उसको हम n मान लें तो n मतलब वो अगर ऑड होता है इसके साथ मल्टीप्लाई का नंबर, तो रिजल्ट साइन किस में बदलेगा? कॉस में। कॉस किस में बदलेगा? साइन में। टेन किस में बदलेगा? कॉट में। कॉट किस में बदलेगा? टेन में। कॉसेक सेक में। सेक कॉसेक में बदलते हैं, अगर आपको रिकॉल हो रहे हो फॉर्मूले वो, ठीक है। तो 90 माइनस थीटा साइन थीटा, फिर 90 प्लस थीटा, तो आप किस क्वाड्रेंट में आ जाएंगे? 90 प्लस थीटा इट मींस सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में अगेन साइन कैसा होता है? पॉजिटिव, इसलिए जो रिजल्ट आ रहा है ये पॉजिटिव है। बट ये फिर से ऑड होने के कारण साइन किस में चेंज हो जाएगा? कॉस में चेंज होगा। अब यहां पर ध्यान दीजिए, 180 माइनस थीटा, 18 साइन 180 माइनस थीटा, अगेन यू विल बी इन विच क्वाड्रेंट? 180 माइनस थीटा सेकेंड। सेकंड क्वाड्रेंट। इन सेकंड क्वाड्रेंट साइन इज पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव, राइट। तो रिजल्ट तो पॉजिटिव ही होने वाला है। अब रिजल्ट हमने डिसाइड कर लिया कि साइन इज पॉजिटिव और नेगेटिव, वो हो गया पॉजिटिव। नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस कि अब साइन आएगा कि कॉस आएगा। ये कहाँ से डिसाइड होता है? अब भी मैंने बताया आपको ये हाउ टू डिसाइड कि आंसर विल बी साइन और कॉस। साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा और कॉस थीटा, ये कैसे डिसाइड हो रहा था? इससे कुछ हेल्प मिल रही थी, यहाँ से ये पाई से कुछ हेल्प मिल रही थी। मैंने आपको बताया है कि इसको 90 के मल्टीपल में डिवाइड वो करते हैं, तो 2 इंटू 90 लिख सकते हैं 180 को, 2 इंटू 180। तो 2 Yes, sir. 2 जो हो गया, 2 कौन सा नंबर हो जाएगा? 2 इज इवन नंबर, और 9 तो 90 का मल्टीपल यहाँ पर इवन मिल रहा है। जब इवन नंबर मिलता है ना, तो जो एंगल ओरिजिनल साइन की वैल्यू निकाले तो साइन ही आएगी। मगर यहाँ पर ये चेंज हो रही थी, फर्स्ट 2 में कॉस हो रही थी। क्यों? क्योंकि 90 का जो मल्टीपल है वो ऑड नंबर है, 1 आ रहा था, इसलिए थर्ड फर्स्ट 2 में कॉस है, थर्ड में साइन है। और इस एंगल से जो 90 माइनस थीटा या 180 माइनस थीटा, इससे हम डिसाइड करते हैं कि किस क्वाड्रेंट में है, उसका साइन ले लेते हैं। 180 प्लस थीटा साइन, साइन 180 प्लस थीटा इज इन विच क्वाड्रेंट? Third quarter. थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? साइन इज थर्ड क्वाड्रेंट साइन इज नेगेटिव। नेगेटिव। अब ये तो पक्का हो गया कि रिजल्ट जो आने वाला वो माइनस आ रहा। अब हमको इस पर फोकस करना है कि साइन आएगा कि कॉस आएगा। आएंगे या तो साइन आता है, देखिए साइन, इनके साइन और कॉस के फॉर्मूले में साइन और कॉस ही रहेगा और कुछ नहीं आता है। तो अब ये डिसाइड करना है कि आंसर विल बी साइन और कॉस। माइनस तो डिसाइड हो गया, तो हमने फोकस किया कि ये 180 है, इसको हमने ब्रेक किया 90 के उसमें, तो 2 इंटू 90 लिख सकते हैं 180 को। अगेन 2 इज इवन नंबर, और इवन नंबर अगर होता है तो हमारा रिजल्ट साइन का साइन ही रहेगा। तो माइनस तो रहा मगर साइन रहा। रिकॉल हो रही है भाई ये वाली चीज की? नहीं हो रही है? आपने Yes, ऐसे ऐसे ही किया था, इसी तरीके से सर ने बताया था। मतलब हो सकता है बताने का मेथड अलग हो, तो रिकॉल करने में आपको दिक्कत जा सकती है, मैं मान सकता हूँ, मगर बेसिक आपको यही समझनी पड़ेगी बात। फिर था 3π/2 माइनस अल्फा। 3π/2 मतलब कौन से क्वाड्रेंट में है आप? थर्ड क्वाड्रेंट ही है ना। 3π/2 माइनस अल्फा, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस साइन कैसा होगा? नेगेटिव। और ये 90 का मल्टीपल कितना है? 3 है, तो ये साइन किस में बदलेगा? कॉस में। हेलो स्टूडेंट्स, Hello. आ रही है बात समझ में? रिकॉल हो पा रहा है कि नहीं हो रहा है? Yes, sir.
अगर ये आपको बेस्ड समझ में आ गया तो आप किसी भी चीज का फॉर्मूला लिख सकते हैं। इनमें से ये जो इतने लिखे हुए टेबल, ये कोई भी टेबल को आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। जरा बताइए, मैं ओरली पूछूं? अब नाम कैसे जिससे बन जाए वो बोल देना। चलिए बोलिए। tan 180 प्लस थीटा माइनस 10 थीटा। पहले तो आप ये सोचो, tan 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करोगे? तो tan theta third थर्ड क्वाड्रेंट। tan इज पॉजिटिव और नेगेटिव? positive पॉजिटिव। और 180 प्लस थीटा, तो 180 को ब्रेक किया तो 2 इंटू 90, 2 इज इवन, तो 10 का 10 आएगा। तो ये देखिए, ये 180 प्लस थीटा 10 थीटा। राकेश नहीं है। शरद आज शरद आया नहीं क्लास में क्या? चलिए, लोगों की कनेक्टिविटी नहीं है क्या है? ओके, चलिए। तो ये इस तरीके से ये फॉर्मूले टेबल बनवा नहीं रहा हूँ, आपको केवल रिकॉल कराया है। ध्यान आई ना? ये वाली टेबल बनेंगे आप कुछ फॉर्मूले आपसे, ठीक है? अब देखिए, एक और मैं आपको दिखा रहा हूँ फॉर्मूले, उस पर देखते हैं। ये आपके पूरे 11th के जो आप किया करते थे वही पूरे फॉर्मूले हैं। इट इज विजिबल क्लियरली? दिख रहा है? हाँ, देखिए, ये आपको सारे फॉर्मूलों की कहीं ना कहीं जरूरत पड़ने वाली है, ये बनने ही। तो मैं इनको पूरा रिवाइज नहीं कर रहा हूँ, आपसे बनेंगे, ठीक है? ये देखिए यहाँ पर, हाँ, ये साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉज ए प्लस बी, कॉज ए, सारे 11th के फॉर्मूले। tan ए प्लस बी, tan ए माइनस बी, ये इनकी जरूरत पड़ने वाली है अभी। ये tan ए प्लस बी, tan ए माइनस बी, इनकी पड़ेगी। साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा, कॉस थीटा, ये साइन के एक tan के टर्म्स में भी होता है। ये कॉस 2 थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर। इनको आप नोट भी कर लेना, मगर अभी तो नहीं कर पाओगे इतना नोट, बहुत टाइम लग जाएगा, मगर आपको बनने चाहिए ये, ठीक है? ये देखिए, ये क्वाड्रेंट पर वही चीज जो अभी हमने आपको बताई, यहाँ पर बोला है when 90 and 270 डिग्री रेशियो विल बी चेंज, ठीक है? वही चीज है जो अपन ने बोला, उसी पर आप 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, 90 प्लस थीटा, ये चेंज हो रहा है यहाँ पर। साइन कॉस में बदलेगा और ये 180 में तो वही रहता है, ठीक है? ओके, चलिए अपन कुछ और क्वेश्चंस पर डिस्कस कर लें। ये 5th क्वेश्चन कंप्लीटेड और टाइम तो हो गया, टाइम इज 5। भाई कुछ बनेंगे क्वेश्चन आपसे करते हैं इसके नेक्स्ट क्लास पूरे कर लिए? ट्राई करके देख। अच्छा अच्छा, सर कितने कर लिए सर पूरे? तो किसी ने कर लिए क्या? सर ट्राई करने को बोल रहा है। हाँ, गुड गुड। सर हाँ, सर पहले आयुष यही कह रहा था पूरे कर लिए। ट्राई करने का ट्राई। कोई बात नहीं, अगर कर लिए तो कौन सी खराबी है, बहुत अच्छी बात है बेटा, सारे लोग करिए, है ना? बहुत बढ़िया है। हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा आपको, है ना? मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप कर रहे हैं। ठीक है, हम इसमें अभी स्टॉप करते हैं क्योंकि टाइम भी हो गया। नेक्स्ट अगेन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। कल नहीं है क्लास, पिछले बार में ध्यान नहीं था। ओके ओके, सो सर पहले अब हम वो चैप्टर छोड़ के ये वाला चैप्टर करेंगे ना पूरा? हाँ,